वॉइसेस में आज हमारे साथ मार्केट पर बातचीत करने के लिए टी आर चोकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चोकसी जुड़े हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। पहले बात करेंगे आज हम पीएसयूज़ की, क्योंकि बहुत बड़ी रैली चल रही है यहाँ पर। आज थोड़ा सा एक झटका लगा सेलेक्टिवली। आपके हिसाब से यहाँ पर क्या अभी भी रैली कंटिन्यू करेगी या आज एक वार्निंग साइन है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए? तो गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक जो हिसाब से मैंने मार्केट के अंदर मूवमेंट देखे और ऑर्डर बुक देखे हैं एग्जीक्यूशन डेस्क के ऊपर, एक चीज वहां पे उभर के आती है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडेड फंड्स आर बेसिकली आई थिंक शिफ्टिंग द पोजीशन फ्रॉम द काउंटर्स where they have basically earned a good amount of return in past, and I think shifting those to those counters where the stocks are available particularly at lower levels and the corrected levels, जिसके अंदर कॉर्पोरेट बैंक्स का भी समावेश है, जहां पे हम एक देख रहे हैं कि आई थिंक टिपिकली पोर्टफोलियो बुकिंग इज हैपनिंग इन दोस काउंटर्स वेयर द रैली टुक प्लेस, व्हिच इंक्लूड्स सम ऑफ द पीएसयू कंपनीज, including the oil marketing companies and ONGC kind of companies. And on the other side, I think the buying has emerged in some of the banking counters, led by State Bank, of course, but along with that ICICI Bank included. I guess I think some of the heavyweights have started participating today. Fortunately, Reliance has given the move upside, and I think largely it is giving the weight allocation towards some of the heavyweights. So that is where the weight adjustment is also happening in the counters. Overall, as I see it, I don't think that I think anything which has changed fundamentally overnight into those stories. But the fact remains that I think the portfolio shifting is taking place for generating the alpha return by trading the portfolio where the profit is available and trading out the portfolio where the profit is available and getting into where the stocks are available at a subdued or corrected prices. देवेन जी, आपसे गुजारिश करूंगा अगर सुबह का समय दर्शकों के लिए हमारे थोड़ा सा हिंदी में आप बात कर पाएं तो अनुरोध है आपसे। सॉरी अनुरोध आपसे ये मतलब व्यू चाहता हूं मैं फार्मा स्पेस पे। आपकी स्क्रीन पे अभी चाहे वो फार्मा हो चाहे हेल्थ केयर हो, सब स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए, ल्यूपिन के नंबर्स, सिप्ला के नंबर्स, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक्स आके ट्रेड करते हुए, ल्यूपिन 52 वीक हाई, फ्रेश, अपोलो आज ये काफ़ी बड़ा थ्रस्ट क्रिएट करता हुआ ऑल टाइम हाई पर। अभी हेल्थ केयर में और हॉस्पिटल्स में सर अभी क्या चीज़ कर रहे हैं आप लोग? So I don't know. I think लुपिन का जो नंबर जो आए हैं वो नंबर काफी हद तक आई थिंक सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव नंबर्स आए, maybe till the last year and I think good part of the current year also. I think the performance has been on a subdued side, and on the lower base I think these numbers are appearing extremely smart on the growth side. I haven't gone into the detail कि जिसके अंदर हमने ज्यादातर उसका एनालिसिस किया हुआ immediately कि which are the product segments or therapeutic segment I think has contributed better, but overall I think on the face of it the numbers look I think quite decent. दूसरी तरफ हॉस्पिटल सेगमेंट की भी बात करें विद इन द हेल्थ केयर, तो वहां पे भी अपोलो के अंदर जो हिसाब से मैनेजमेंट कमेंट्री उभर के आ रही है उसके अंदर आई थिंक दे आर फोकसिंग आल्सो इक्वली ऑन टू द फार्मेसी बिजनेस, where I think the new store contribution has started happening into the business. So overall, I guess I think the valuation wise देखा जाए तो मेरे ख्याल से I think everything is sound, everything appearing adequately priced. यानी I think most of the upside is I think already built into the price currently. Maybe कोई लंबा correction कोई जगह पे मिलता है तो that is an opportunity. Otherwise, most of the counters, including Sun Pharma, including Dr. Reddy's, including Cipla, maybe I think the prices are to the perfection level at this point of time as I see it on the earning out. ओके, अच्छा देवेन, मैंने ओवरऑल पीएसयूज़ की बात की। एक स्पेसिफिक मुझे सवाल पूछना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। गिवन एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट यहाँ पर अब स्टॉक में और जो पिछले क्वार्टर नंबर्स आए और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, क्या आप पोर्टफोलियो में ऐड करने को रेकमेंड करेंगे यहाँ पर स्टॉक को? हाँ अनुज, डेफिनेटली आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेटर अपॉर्चुनिटीज विद इन द पीएसयूज, क्योंकि एक तरफ देखें तो कंपनी की साइज जो है ये साइज मीनिंगफुली मायने रखती है। बजट के पहले एक और बजट के अंदर भी एक अनाउंसमेंट ऐसा रहा था कि गवर्नमेंट का ध्यान रहेगा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, कैसे उनकी साइज बढ़ाई जाए। आई थिंक एसबीआई इज वन सच कैंडिडेट के जहाँ पे आई थिंक आप ये ध्यान रख सकते हैं। जो फर्स्ट वर्जन के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक का कंसोलिडेशन हुआ था
उसका कंसल्टेशन का जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो किसी ने किया है तो एसबीआई ने बहुत अच्छी तरह से किया है। एंड वी वुड प्रोबेबली कंसीडर के जब भी नई गवर्नमेंट आती है और अगले 5 साल का प्रोग्राम सेट करती है, उसके अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनका वापिस फर्दर एक सेकंड राउंड में कंसल्टेशन होना जरूरी बनता है। एंड अगेन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एसबीआई वुड बी आई थिंक अ फेवरेबल स्पॉट, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। So at the same time, I think they would have the relatively a stronger impact with a relatively smaller increase in the capital. They will be in a position to absorb some of the mid-size, small-size banks. और ये जो प्रक्रिया है उसके अंदर आप उसका एयूएम अगले 4 या 5 साल में देखो तो करीबन 30 लाख करोड़ का जो एयूएम है वो मेरा ऐसा मानना है कि 2027-28 के अंदर आई थिंक इट कुड प्रॉब्ली एक्सीड 50-55 लाख करोड़ एयूएम। So that is where possibly I think one is keeping an eye on अगले 3-4 साल के अंदर अगर आपको स्टॉक के अंदर इतनी बड़ी प्रक्रिया दिखती है ग्रोथ की, तो शायद आपको इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक को बहुत सिस्टमेटिकली कंसिडर करना चाहिए पोर्टफोलियो। मे बी आज जो भाव बढ़ा है तो शायद कल करेक्शन आ सकता है। दैट करेक्शन वुड बी अ मीनिंगफुल बाय अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द एसबीआई काइंड ऑफ। ओके, इस बीच एक बार स्टॉक लेके आइए एक इंडियन होटल्स करीब 1.5% की मूव के साथ 535 पे, ये अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे है। देवेंद्र जी, कोई मिड कैप में होटल और कोई चीज कर रहे हैं आप लोग ये? सो वीरेंद्र, होटल तो नहीं, बट हम लोग ने एक कंपनी के ऊपर ध्यान दिया है एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी व्हिच इज कनेक्टेड विद द टूरिज्म। ऑफ कोर्स आई थिंक लास्ट ईयर के अंदर वो आइडेंटिफाई किया था 2022-23 के अंदर, एंड दिस ईयर इट हैज बिकम अ गुड बज़वर्ड इन द मार्केट प्लेस। बट लीव असाइड दैट पार्ट, इट्स अ कंपनी कॉल्ड प्रावेग लिमिटेड व्हिच इज अ बीएसई लिस्टेड कंपनी ओनली। ये कंपनी का जो कारोबार है वो जुड़ा हुआ है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में। दे पुट अक्रॉस आई थिंक द टेंट सिटीज एट द टूरिज्म स्पॉट। रिसेंटली अयोध्या के अंदर भी ब्रह्मकुंड के बाजू में जो टूरिज्म टेंट सिटी खड़ी हुई है, इट इज क्रिएटेड बाय दिस कंपनी। सो ये जो टेंट सिटी का जो कारोबार है उसके अंदर एवरेज रूम रेट पर नाइट आई थिंक इज समवेयर अराउंड 8 to 10,000 रुपीज। सो दे आर नॉट चीप, बट एट द सेम टाइम आई थिंक देयर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आई थिंक इज सिग्निफिकेंटली लो। तो करीबन 1.5 साल के अंदर आपका पूरे का पूरा कैश इनफ्लो आ जाता है जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है उतना। सो दिस इज बिकमिंग अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल। दे आर करंटली इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट्स एट अराउंड 10 to 12 लोकेशंस, और मेरा ऐसा मानना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर दे वुड हैव इवेंचुअली 25 लोकेशंस where they would have number of tents I think which would be in excess of around, so the rooms would be 10 rooms would be somewhere around 700 plus. So that is where possibly I think you can count this kind of company from investment point of view. Of course I think market में correction आता है तभी उसका ध्यान देना चाहिए लेने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। ओके, प्रावेग आपकी स्क्रीन पे 923 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, मैं चार्ट देख रहा था इसका, इसमें मूव शुरू हुआ था 18 दिसंबर को 610 रुपए से 1300 रुपए हो गया है। अयोध्या वाला तो खैर ये था ही, उससे पहले एक्चुअली जो रन ऑफ कच्छ है ना वहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया था, वहाँ से ये स्टोरी चलनी शुरू हुई थी। बिल्कुल जैसा देवेंद्र भाई ने बोला, तो वहाँ पर खैर। अच्छा देवेंद्र, एक कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पर। एक और सेक्टर जहाँ पर बहुत अच्छा मोमेंटम है वो है सीमेंट स्पेस। यहाँ पर कोई स्टॉक पिक किया क्या आपने? लार्ज कैप, मिड कैप, कुछ भी? So Anuj, I think the opportunity stays with the Ambuja SCC combined, and which is the Adani Group now. इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है क्योंकि एक तरफ आई थिंक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है वो बहुत कन्विंसिंग है, दूसरी तरफ आपका लॉजिस्टिक प्ले है जिसके अंदर दिस ग्रुप इज आई थिंक वेरी फेवरेबली प्लेस्ड बिकॉज ऑफ द ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन पार्ट। एंड माय रीडिंग सेज दैट आई थिंक सीमेंट के अंदर अगर आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कंट्रोल में आती है और दूसरी तरफ आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन रीच एडिक्वेट है जो एसीसी अंबुजा कंबाइंड के अंदर काफी हद तक बनी है बिकॉज ऑफ द वेरी वेरी पावरफुल legacy that they have enjoyed in this space. मेरा ऐसा मानना है कि I think both these areas are helping this group and the companies individually. The size here also matters because I think the larger the size after Ultratech, I think their combined size would be the meaningful size. And with the acquisition of some of the other units which they have done, I believe that उनका आगे का रोड मैप बहुत अच्छी तरह से खिल जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सीमेंट के अंदर साइज के ऊपर फोकस करना चाहिए, लॉजिस्टिक की कॉस्ट आप कंट्रोल कर सकते हो तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रीच अच्छी है तो फोकस करना चाहिए। अदरवाइज आई थिंक अंबुजा के अंदर एक दूसरा चीज हमने देखा है
कि energy cost, I think they have been systematically bringing down by use of alternate fuels. So we find this particular company is interesting from the investment point of view in the cement space. ओके चलिए एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूँ, फिर उसके बाद देवेंद्र जी से बात करेंगे। और जो डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं आयशा मोटर्स इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव इसने जनरेट किया, और साथ ही साथ एक बार एसीसी लेके आइएगा, ग्रासिम, सब मूव काफ़ी अच्छा दे रहे हैं। अच्छा देवेंद्र जी, एक स्टॉक मैं आपकी स्क्रीन पर ला के रखूँगा जिसमें मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया, और वो था DRF, और DRF के साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस। रियल स्टेट पे सबसे बड़ा मूव यही था, और उसके बाद HFCs में। ये LIC हाउसिंग फाइनेंस आप लोगों की इस वक्त प्रीफर्ड स्टॉक्स की लिस्ट में है HFCs में या नहीं है, या फिर कोई और HFCs, मतलब NBFCs में कोई HFCs? So I think that ज्यादातर हमारा concentration बजाज फाइनेंस के ऊपर रहा है, because बजाज फाइनेंस has a very successful housing finance company in its portfolio as a subsidiary, and I think it is growing also very systematically with that 40% plus kind of a growth rate. So which is again I think giving us good amount of confidence. Prior to HDFC merged into HDFC Bank, the focus was also equally high on HDFC, and we continue to hold the merged company shares. That's a disclaimer, of course, from my side. So we have been liking these two companies. LIC Housing Finance, I think, is equally a good play. And हमारा एक overall एक ऐसा approach बना है कि अगर we want to bet safe in the real estate sector, then bet safe with housing finance companies. क्योंकि growth in the real estate sector is basically not without the housing finance companies and their contribution to it. Most of these housing finance companies are growing at the rate of around 20% plus kind of a growth rate. And some of these larger names, I think, are also having the ability to buy the money at a cheaper cost. So अपना नीम जो है बिजनेस के अंदर, मॉर्गेज बिजनेस के अंदर नीम जो कॉम्पिटिटिव रहता है, वो नीम आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हो. So that is where I think we get a reasonably good amount of clarity. We expect that these companies have the potential, and they have been doubling in every 4 years time, 4.5 years time. So that is where I think we continue to stay invested in the portfolio with the possibility of doubling the portfolio in 4.5 years time in the housing finance business. ऑलराइट, चलिए देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।